ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਸੈਲਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਔਨ 에ਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ बैठे हैं डॉक्टर गीतिका जैन जी को। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेम टू यू, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका क्या क्वालिफिकेशन है? सर मैंने एमडीएस किया है प्रोस्टोडोंटिस्ट में, ओके, फ्रॉम पीजीआई रोहतक। ओके, Yes. अच्छा डॉक्टर साहब, After that I have done fellowship as well Okay. in endo and then implants. Yeah, any super specialty? yeah, implantologist. Oh, beautiful. Doctor साहब, one thing we like to know regarding dental care. Can you convey some message to the public? Yes, so it is very important. Actually, people are ignoring the dental health, and generally, as prevention is always better than cure, right? Yeah. So we are not sure what problem are going in our teeth. So Yeah. we should always visit after 6 months to a dentist, and it is mandatory for everyone, like child as well as for any, irrespective of any age. It is mandatory to visit dentist after every 6 months, and they should definitely take proper care as they take care of your skin and health. Dental is one of the part. Okay. It is very So doctor साहब, one thing, brushing is an exercise. Yes. Is there any special way to brush the teeth? सर ब्रशिंग करने के तरीके बहुत ज़्यादा होते हैं, कई तरीके की ब्रशिंग टेक्निक होती है। इसमें हम जनरली वी यूज़ द मॉडिफाइड स्टिलमैन टेक्निक। इसमें रहता है कि हमें वी शुड नॉट डू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड वी हैव टू, कैन आई शो यू? Yeah, please, that would be better. Okay. So like in your upper teeth, generally people are doing brushing like this, Yeah, right? yeah. So this is very harmful technique for the dental health because they causes abrasion and the pits here. Yeah. जिसकी वजह से patients को sensitivity रहता है. Okay. Okay. And so we should always keep the toothbrush like inclined. Okay. Okay. And facing towards the gums. Then to and fro 3 to 4 times. Then away from the gums like this in the same way. Downwards away from the gums. Yeah. Then on our biting areas. Okay. Okay. We are ignoring So inner that our surfaces. as gums well. may not have that Yes. And from inner surfaces as well. harm. Okay. Like this. Okay. Okay. So we can do the brushing in front areas like this. Okay. Okay. Away. It should be always away from the gums. Okay. In your lower cases, maximum people are coming with a calculus deposition in their lower Yeah. teeth. Yes. So they are not brushing like this, and which is very important because of Okay. saliva. All the calculus is deposited inside the teeth. Inside side. Okay. So we have to take out the brushes like this. Again, outwards, away from the gums. Then from here, horizontal. Then away from the gums. Then our biting areas. 3 to 4 times. Then your outer cheek areas. Like this. We have to brush our teeth. Okay. So there is also a way of rinsing our mouth. Generally people just take the water inside and they spit it out. If we have to flush from our oral cavity, then we have to spit. Okay. Okay. अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताएं, जब कोई डेंटिस्ट स्केलिंग करता है तो पीपल सेज कि हमारे दांत की सादी है, छोटे कर दिए। हाँ. So what you would like to say to तो ये patients? बहुत बड़ा मिथ है हमारे पेशेंट्स के बीच में. एक्चुअली वी आर नॉट यूजिंग एनी कटिंग बर्स फॉर ट्रिमिंग आवर टीथ. वी आर जस्ट क्लीनिंग एज वी क्लीन विद अ मॉप. ओके. वी आर क्लीनिंग द एरियाज विच द ब्रशेज आर नॉट एबल टू क्लीन. ओके. जो भी डिपॉजिट एक बार हो चुका है, दैट इज कैल्सिफाइड ऑन द टीथ. वो चिपक चुका है. दैट वोंट बी क्लीन बाय ब्रश इटसेल्फ. सो वी जनरली गो टू डेंटिस्ट एंड वी आस्क फॉर द स्केलिंग. Okay. और स्केलिंग का कोई भी नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं होता है. वी आर यूजिंग द अल्ट्रासोनिक टिप्स. इट जस्ट मूव्स एंड ब्रेक द डिपॉजिट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, जिसकी Okay. वजह से वो रिमूव हो जाता है. ਫਾਲੋ ਸਮਝੀ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੇਲਿੰਗ ਦੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਨਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਘਿਸਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ? So cavities, as we all know, everything, everywhere, they are germs, right? So if we are not brushing properly, ठीक है, अगर हमने दांतों को, जो मैंने आपको ब्रशिंग टेक्निक बताया है, इफ दे आर नॉट फॉलोइंग इट प्रॉपरली, तो हमारे जो टीथ हैं, दे आर नॉट स्मूथ, दे आर रफ.
आई मीन दे आर पिट्स एंड फिशर्स। Okay. ठीक है, जो जहाँ पे वहाँ पे खाना फंसता है। जी। तो जब भी खाना फंसेगा एंड वी आर नॉट यूजिंग प्रॉपर ब्रशिंग, तो रात को जितने भी हमारे हमारी ओरल कैविटी के जर्म्स एंड दे गेट एक्टिव ओके एंड दे प्रोड्यूस द लैक्टिक एसिड ओके which causes the decalcification of our teeth, which is called the caries. ओके As such, there is no like wiggling germs जो हमारे को बोला जाता है कि कीड़ा लग गया है, कीड़ा लग गया है। It's not like that. ब्यूटीफुल। देखो बहुत अच्छा मैसेज मिले है डॉक्टर साहब। कोई डॉक्टर साहब मैसेज देना चाहोगे पब्लिक को, कोई टूथ केयर रिगार्डिंग या कोई स्पेशल केयर? तो स्पेशल केयर ये है कि 2 टाइम ब्रश करें, अच्छे से रिंसिंग करें, पानी पिएं खूब सारा, जंक फूड स्वीट्स को हम अवॉइड करें और डेंटिस्ट को मिलना ना भूलें। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ना रूट कनाल को पेशेंट हमें इतना कमेंट करते हैं कि उसको हवा बनाया हुआ है रूट कनालिंग को। सर आई डोंट थिंक सो। आई थिंक यू शुड मीट आवर डेंटिस्ट। हमारे पेशेंट से मिलिए आप, उनके रिव्यूज चेक कीजिए। सर अब प्रॉपरली अगर हम कर रहे हैं रूट कनाल में, देखो कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं दे डोंट फॉलो अप। मोस्टली पेशेंट की साइड से होता है, वो फर्स्ट विजिट में आते हैं, उनको फर्स्ट विजिट से उनको इतना रिलीफ मिलता है, दे डोंट विजिट अगेन। दे जस्ट वांट टू ट्राई कि जब तक चल रहा है कच्चा ट्रीटमेंट तब तक चलाएं। ठीक है, वो हमारा इन्फेक्शन का कॉज बनता है जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब पेशेंट तो डॉक्टर के पास आएगा जब बहुत पेन होगा, है ना, जब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होगा। Exactly. तो अब डेंटिस्ट इज नॉट लाइक गॉड ना कि हर चीज को परफेक्टली करेगा। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, बट पेशेंट का भी है कि उसको फॉलो अप पे जाएं, एक सिटिंग कराया तो बस कर दिया, पूरा ट्रीटमेंट करवाएं। इट्स नॉट अबाउट द सिटिंग, इट्स अबाउट द ट्रीटमेंट कंप्लीशन। कि ट्रीटमेंट कंप्लीट डॉक्टर ने से हुआ, अभी आपने पूछा, आपने बोला है कि सेकंड टाइम आना है, तो यू शुड गो एंड टेक द सेकंड। डेफिनेटली वी आर डूइंग सिंगल सिटिंग आरसीटी एज वेल, तो वी आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। आपने जाना बहुत कुछ, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये इंटरव्यू कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अब हम आए हैं सिंगला आय वालों के पास। मेरे पास बैठे हैं डॉक्टर अलका जी, जो गायने के डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब आपका क्या क्वालिफिकेशन है जी? MBBS MD। आपका हॉस्पिटल का क्या नाम है डॉक्टर साहब? सिंगलाई हॉस्पिटल, फौजी रोड को। आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब? गायनी। अच्छा, गायने के बारे में आप पब्लिक को कुछ मैसेज देंगे सो दैट पब्लिक में टेक द अवेयरनेस। तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वाइल प्रेगनेंसी? During pregnancy, all ladies should get their routine checkups at the nearest possible center, and they must get their routine ultrasounds done also. अच्छा डॉक्टर साहब, वन थिंग लाइक टू नो, आजकल क्या होता है कि जब कोई पेशेंट आता है ना यहाँ पे गांव से या इंटीरियर से, तो किसी को प्रॉब्लम होती है, जब कोई केस ऐसा हो जाता है कि उसको सर्जरी करना पड़ता है, बच्चे के गले में कॉर्ड्स आ गया या ऑक्सीजन कम हो गया, तो आपको पेशेंट को कैसे कन्विंस करते हैं आप कि ये आपका सर्जरियन केस है? तो इसमें आपको कुछ दिक्कत आती है? पेशेंट को बताना पड़ता है कि उसके बेबी की हार्ट बीट कम हो रही है या बच्चे की पॉटी निकल गई है अंदर। तो, दिस इज हाउ वी। तो आपको इन चीज़ों में दिक्कतें आती है कुछ? बिल्कुल आती हैं। पेशेंट के पहले तो साथ में रिलेटिव्स नहीं होते, फिर वो कहते हैं हमारे रिलेटिव आएंगे, वो डिसीजन लेंगे कि सर्जरी करवाना है कि नहीं करवाना। उतने टाइम में उसका जो बच्चे का जो प्रेशियस टाइम होता है, इनिशियल आवर्स, वो लॉस हो जाते हैं। डॉक्टर साहब देखो, ऊपर भगवान है, नीचे डॉक्टर है। डॉक्टर ने तो मैक्सिमम कोशिश करनी होती है कि इस समय डॉक्टर का एक तरह का इम्तिहान भी है, टेस्ट भी है, और पेशेंट को अवेयर होना चाहिए कि डॉक्टर जो करता है पेशेंट की भलाई के लिए करता है, क्योंकि इन्होंने इतनी क्वालिफिकेशन, इतना पढ़े हैं, एक हिप्पोक्रेटिक ओथ भी लिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर के ऊपर फेथ को पूरी तरह से फेथ करना चाहिए। सो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस चीज़ के ऊपर तो बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है। डॉक्टर्स को एक्चुअली कोर्ट्स ने और सब मीडिया वालों ने वो बना दिया है, बिजनेसमैन बना दिया है, और तो इसलिए पेशेंट का जो फेथ है वो चला गया है। ये प्रॉब्लम आ रही है। तो पेशेंट को हमेशा दे ऑलवेज, उनको लगता है कि डॉक्टर बस लूटने को ही बैठे हुए हैं। एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा चला हुआ है डॉक्टर्स के अगेंस्ट। सो इस चीज़ों को हम रिक्वेस्ट करते हैं चैनल की तरफ से और डॉक्टर साहब की तरफ से, आप अवेयर होइए। जो डॉक्टर्स करते हैं पेशेंट के अच्छे के लिए करते हैं, पेशेंट की भलाई के लिए करते हैं। डॉक्टर की जिंद जान लगी होती है पेशेंट की जान बचाने के लिए, सो उससे बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। सो इस चीज़ को आप जानिए। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हमारी ब्रांच गायनी ऑप्स तो ब्रांच ही ऐसी है इसमें कि वी आर डीलिंग विद 2 लाइव्स एट वन टाइम, मदर और बेबी। एग्जैक्टली। तो हमारे ऊपर तो डबल प्रेशर होता है बिल्कुल, टू सेव बोथ मदर एंड बेबी।
Okay, thank you, Doctor. Thank you. Nice of you, so nice of you. Thank you very much.